محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔ آغاز سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ سی ایم کے سی آر کی اسکیمات سے متاثر ہو کر مختلف پارٹیوں کے قائدین کی BRS پارٹی میں شمولیت، گلابی کھنڈوا پہنا کر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا پارٹی میں خیر مقدم۔ عید میلاد تقاریب گنگا جمنی تہذیب کا مظہر، بھائی چارگی سے ترقی ممکن، تمام طبقات کا اعتماد BRS کو حاصل۔ آنے والے انتخابات میں حلقہ اسمبلی بانسواڑہ سے میں ہی امیدوار رہوں گا، اسمبلی اسپیکر پوچورام۔ اردو صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے اقدامات، ایم ماجد راشٹریہ سہارا کو ان کی بہترین خدمات پر تہنیت۔ تلنگانہ یونیورسٹی وائس چانسلر کو برطرف کرنے کا مطالبہ لے کر طلبہ تنظیموں کا احتجاج، MLC کے کویتا کو حوالے کیا میمورنڈم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بالکنڈہ حلقے کی ترقی سے متاثر ہو کر کمرپلی منڈل کے BJP، BSP، کانگریس پارٹی کے قائدین و اراکین نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی قیادت میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بالکنڈہ حلقے میں کی جانے والی ترقیات کو دیکھتے ہوئے مختلف منڈلوں کے مختلف پارٹیوں کے قائدین نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کمرپلی منڈل کے BJP، BSP، کانگریس پارٹیوں کے کسان قائدین نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی قیادت میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر BRS پارٹی میں شامل کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ CM KCR کی قیادت میں تلنگانہ کو خوب سے خوبصورت بنایا گیا۔ غریب عوام، کسان، CM KCR کی دو آنکھیں ہیں۔ CM KCR کی قیادت میں ترقیات عمل میں لائی جا رہی۔ ہر قوم کی عوام تلنگانہ حکومت سے بہت مطمئن ہے۔ دیش بھر میں تلنگانہ کی ترقی سر فہرست ہے۔ اس ترقی پر دیش بھر میں ہر ریاست کی نظر ماڈل تلنگانہ پر جمی ہوئی ہے۔ دیش میں ایسا ہی ترقیاتی ماڈل ریاست کی خواہاں ہے۔ CM KCR کی قیادت ہی تلنگانہ ریاست کے ساتھ ساتھ پورے دیش کو ضرورت ہے، جس کے لیے ملک کے عوام منتظر ہے۔ چیف منسٹر KCR کے حکم پر آنے والے اسمبلی انتخابات میں ہی حلقہ اسمبلی بانسواڑہ سے BRS کا امیدوار رہوں گا اور بھاری اکثریت سے عوام مجھے کامیاب کرے گی۔ قریش برادری کی عید میلاد تقریب سے اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کا خطاب اور قریش برادری کے تمام مسائل کی جلدی یکسوئی کا تیقن۔ بانسواڑہ مستقر پر قریش برادری کی جانب سے عید میلاد تقریب کا بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے شرکت کی۔ اسپیکر کی آمد پر منتظمین نے اسپیکر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس عید میلاد تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کہا کہ ہماری تلنگانہ تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہے
और बीआरएस हुकूमत चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात की एकसार तरक्की के लिए काम कर रहे। तमाम तबक़ात की मुकम्मल तायद व एतमाद बीआरएस को हासिल होने का तयक़ुन किया और कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में हल्का बांसवाड़ा से बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ही होंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर के हुक्म पर मैं बीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से बांसवाड़ा हल्के से मुकाबला करूंगा और भारी अक्सरियत से जीत होने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर ईद मिलाद तकरीब में शुरका की लवाजिमात और हस्बे रिवायत शीर खोमे से तवाज़े की गई। काम हो रहे हैं और करेंगे। भाइयों के आज तक ब्रेक था, स्पीड ब्रेकर आके बात कर सकते, जा सकते, उसमें कोई वो अलग रहते। वहाँ लोकल सोसाइटी चेयरमैन इसी ब्रदरीन का सदर फिजिकली तक गया, मेंटल नहीं तका। तो उन्होंने साहब से बताया तो नहीं इस साल आप ही करना है, 75 साल को और 5 साल या 7 साल होते आप ही करना है बोले। तो साहब बड़ी साहब की क्यों मदद, अपने कान से इतना मदद कर रहे किसी को न। कब लोग वहां देखे तो अब पोचाराम श्रीनिवास सीएम साहब पास आए, कुछ ना कुछ और लेके जाते बोलते। केवल जाना में कम रहता, केवल तो मिनिस्टर रह जाए वो बार बार जा सकता हूँ और स्पीकर वैसे नहीं जा सकते। स्पीकर साहब सीएम घर को जाना बोलते तो सब बार बार नहीं जा सकते, कभी कभी 6 महीने के एक बार, साल के एक बार जो उन्होंने बुलाए तो, नहीं तो मेरी जरूरत पड़ी अपॉइंटमेंट लेके जाते। इतना बड़ा होदा अपने को दिए सीएम साहब। और खुशी की बात है आज कमरुद्दीन साहब ईद मिलाद के मौके पे हमको बुला के दावत दिए। यूनिवर्सिटी में मनमानी करते हुए खजाना खाली करने वाले वाइस चांसलर को हटाने का तलबा तंजीमों का मुतालबा। तलबा तंजीमों ने एमएलसी की एक कविता को पेश की तहरीरी याददाश्त। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा के फीसेस की वसूली करते हुए मनमानी खर्च करते हुए खजाने को खाली करने वाले वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता को यहाँ से फौरन निकालने के लिए एमएलसी के कविता को तलबा तंजीमों के कायदीन ने निजामाबाद बीआरएस पार्टी ऑफिस में मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर तलबा कायदीन ने बात करते हुए बताया कि सरकारी इजाजत के बगैर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में बेरोजगारों से लाखों रुपये वसूल करते हुए उन्हें मुलाजिमत दी गई। यूनिवर्सिटी स्टाफ को तनख्वाहों की अदायगी के लिए वाइस चांसलर ने हजारों में कमीशन वसूल किया। गुज़िश्ता में गर्ल्स हॉस्टल के तालिबात के साथ वाइस चांसलर ने डांस व धूमधाम किया और यूनिवर्सिटी में मौजूद लेडीज टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पर वाइस चांसलर की इस हरासानी को एमएलसी के कविता के इल्म में लाया। वाइस चांसलर की इस हरासानी से लेडी स्टाफ अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश है। यूनिवर्सिटी में असल रजिस्ट्रार कौन है, तलबा को आज तक सही पता न चल सका, जिससे स्टाफ भी तशवीश में है। हुकूमत से असल रजिस्ट्रार की तलबा स्टाफ से पहचान की जरूरत शनाख्त कराने तलबा ने ख्वाहिश की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के तलबा के अहम मसाइल को डस्टबिन में डालते हुए तलबा पर कोई अहमियत नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी वीसी तलबा फैकल्टी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करते हुए मनमानी कर रहे। वाइस चांसलर रिश्वत लेते हुए लेक्चरर्स को प्रमोशन के नाम पर बेहिसाब पैसे वसूल करते हुए कुछ लोगों को गैर जिम्मेदाराना तौर पर प्रमोशन भी दे रहे। तलबा ने एमएलसी की कविता को बताया कि गुज़िश्ता में आपके तौर से कोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ अमल में लाया क्या, यूनिवर्सिटी को गैर जिम्मेदार अफराद के कैद से निजात दिलाने की जरूरत है। इस मौके पर इस प्रोग्राम में तलबा तंजीम कायदीन जे राजेश्वर, संतोष, लक्ष्मी नारायण, मोहन, साई तेजा, रमेश, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అవినీతి దుర్వినియోగానికి పాల్పడినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని వెంటనే తొలగించాలని ఈరోజు విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లా అదేవిధంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఫీజుల రూపంలో చెల్లించినటువంటి డబ్బులను వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఈరోజు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। యూనివర్సిటీలో 1వ తారీఖు అసలు జీతాలు వేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది। అదేవిధంగా రిజిస్టర్ ఎవరో తేల్చాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వానిపైన ఉన్నది। కేవలం వీసీ అవినీతి ఆరోపణలు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి కోసం ఈరోజు రిజిస్టర్ల దోపులాట జరుగుతున్నది। వెంటనే స్పష్టమైన రిజిస్టర్ని ఈరోజు పెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిపైన ఉంది। అదేవిధంగా యూనివర్సిటీని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత కూడా
యూనివర్సిటీ పైన ఉన్నది. యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఏనాడు జరగని విధంగా యూనివర్సిటీలో 3 బ్రాంచులలో ఖజానా మొత్తం కూడా ఈరోజు ఖాళీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో కూడా అసలు అవసరం లేని పరికరాలను కూడా కొనుగోలు చేసి అందులో కమిషన్లు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అనేక మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని క్యాష్ ప్రమోషన్లు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలో ఒక వేతనం అతను పనిచేసినటువంటి వేతనం కూడా చెల్లించాలని तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी एम.ए. माजिद खुसूसी तौर पर शह नशीन पर मधु एम.ए. माजिद की शानदार बेमिसाल लाजवाब सहाफती खिदमात पर रियासती सतह पर जिम्मेदार। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। हिंदुस्तान भर के कई मकामात से उर्दू सहाफियों ने शिरकत करते हुए एहतियात का मुजाहरा किया। कौमी कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर करते हुए तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा क्या कि महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा का जारी करदा जियो 239 मंजूर करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड की तमाम सहाफियों को इजराई अमल में लाई जाए, जिसमें उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी अखबारात, डिजिटल मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, रसायल व जराइद और फ्रीलांस जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए। स्टेट और जिला मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू सहाफियों को मेंबर के हैसियत से नामजद किया जाए। फौत होने वाले सहाफी के अहलो अयाल को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर करने के अलावा दीगर मुतालिबात करारदाद में शामिल किए गए। कौमी कॉन्फ्रेंस से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक एचओडी महकमा कम्युनिकेशन व जर्नलिज्म प्रोफेसर पद्मजा शाह, रेसिडेंट एडिटर दी दक्कन क्रॉनिकल श्रीराम क्री, एमआईएम रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने खिताब करते हुए सहाफियों के मसाइल पर रोशनी डाली। सदर TUWJF एम.ए. माजिद ने कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। TUWJF की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर एम.ए. माजिद रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी ने तमाम सहाफियों को मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत भर के तमाम सहाफियों से ख्वाहिश की कि वो TUWJF की रुकनियत हासिल करते हुए एहतियात का मुजाहरा करें। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस में जिला निजामाबाद से नुमाइंदगी करने वाले रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी एम.ए. माजिद को खुसूसी तौर पर शहनशीन पर मधु क्या उन्होंने कई सहाफियों में अपने हाथों से मोमेंटोस की तकसीम अमल में लाई। एम.ए. माजिद की शानदार बेमिसाल लाजवाब सहाफती खिदमात के एतराफ में मोमेंटो भी पेश क्या एम.ए. माजिद की शानदार बेमिसाल लाजवाब सहाफती खिदमात का रियासती सतह पर जिम्मेदारी दी गई। पी सदानंद रेड्डी ट्रस्ट की खिदमत काबिल सताइश। इस ट्रस्ट की मिसाल लेते हुए माशी हसरात भी खिदमत खल्क के लिए आगे आते हुए ताउन की अपील। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। प्रोदक्टर सदानंद रेड्डी ट्रस्ट के जरिए किए जा रहे खिदमत काबिल सताइश है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस बात का किया इजहार। आरमूर मंडल के अंकापुर हदूद में सदानंद रेड्डी ट्रस्ट की क़यादत में तामीर नौ आश्रम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हमरा इफ्तिताह किया। तमाम सहूलियात से आरास्ता खुले माहौल में बड़े बड़े आरामदाह कमरों के साथ तामीर पर जिला कलेक्टर ने ट्रस्ट इंतजामिया कमेटी जिम्मेदारान की सताइश की, जबकि बहुत तवील अरसे से उम्र रसीदा ज़ईफों के लिए इस ट्रस्ट के जरिए ओल्ड एज होम के जरिए खिदमत अंजाम दी जा रही। सदानंद ट्रस्ट वालों ने इंसानियत के तहत खिदमत खल्क के लिए आगे आते हुए लावारिस बच्चों के लिए उसी इहाते में आश्रम की तामीर किया जाना बहुत अच्छी बात है। मालदार अफराद तो बहुत होते हैं, लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इस मामले में सदानंद ट्रस्ट सबसे आगे है। इस ट्रस्ट की मिसाल लेते हुए सकत रखने वाले खिदमत खल्क के प्रोग्राम के लिए आगे आए। इसके अलावा सरकारी ताउन के साथ भी समाज के हर फर्द की खिदमत अंजाम देने के लिए सदानंद ट्रस्ट ने अपना हाथ हमेशा आगे बढ़ाया। बेसहारा व लावारिस बच्चों को तमाम सहूलियात से आरास्ता करते हुए मुफ्त आश्रम की तामीर, बच्चों की खिदमत में दिलचस्पी बताने वाले सदानंद ट्रस्ट को जिला हमारा भी ताउन रहेगा। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट चेयरमैन सदानंद रेड्डी, जिला तरक्याती ओहदेदार, मकामी अवामी कायदीन व दीगर मौजूद थे। చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. డబ్బు ఎంత సంపాదించేమని కాదు,
ప్రజల కోసం, పేదల కోసం, అనాథల కోసం ప్రతినిత్యం పనిచేయాలంటే ఒక మంచి హృదయం కావాలా. మా సదానంద రెడ్డి గారికి అంకాపూర్ గ్రామం అంటే చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రేమ. అది నా నియోజకవర్గంలో ఉండడం, అట్లాంటి సదానంద రెడ్డి గారు నా నియోజకవర్గంలో ఉండడం, ఆయన ఎంత గొప్పవాడైనా తెలంగాణలో ధనవంతులలో ఒక్క ఆయన మా సదానంద రెడ్డి గారు. వారు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు జీవాన్ని నేను అంకాపూర్లో కడుతున్నా నాతోనే 10 సార్లు మాట్లాడారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వారు అడగకుండా కానీ నేను కూడా నా SDF నిధుల నుంచి, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన నిధుల నుంచి ఈ యొక్క ఆశ్రమం ఒక 10 లక్షల రూపాయలు నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా. మా ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్ మేము అందరం వచ్చి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తాం. వారి ఇష్టం ఉన్న పనులు చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. నిజామాబాద్ జిల్లాలో అంకాపూర్ గ్రామంలో సదానంద రెడ్డి గారి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్ఫనేజ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనకి సదానంద రెడ్డి గారి ఇన్విటేషన్ మేరకు ఈరోజు మేము, అదేవిధంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. సో ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమము. అంటే మనకి చాలామంది డబ్బులు సంపాదిస్తారు కానీ ఇలాగ సోషల్ కార్యక్రమాలు అనేది చాలా తక్కువ మంది చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఈ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వృద్ధాశ్రమం కూడా నడుపుతూ ఉన్నారు, చాలా బాగా నడుపుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆర్ఫనేజెస్ కూడా ఈరోజు ఈ బిల్డింగ్ చూడడం జరిగింది. సో అన్ని వస్తువులతో, అంటే బిల్డింగ్ కూడా చాలా క్వాలిటీగా, అదేవిధంగా డార్మెటరీ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా కిచెను, డైనింగ్ హాలు, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్కి సంబంధించడం, అదేవిధంగా విత్ స్టడీ రూమ్స్ చాలా విశాలంగా నిర్మించడం జరిగింది. సో దీని లైసెన్స్ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. సో एमएलसी के कविता की मोहम्मद फयाजुद्दीन के मकान पर आमद, वालिदा के इंतकाल पर पुरसा और गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड निजामाबाद व BRS पार्टी कायद की वालिदा मोहतरमा का माह रमजान मुबारक में इंतकाल पुरमलाल हो गया था। एमएलसी के कविता ने रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मोहम्मद फयाजुद्दीन के मकान वाक़े मुस्तैदपुरा पहुंचकर उन्हें पुरसा किया। एमएलसी के कविता अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड निजामाबाद व BRS पार्टी कायद मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यामगाह पर कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया। वालिदा की मिजाज इंतकाल की वजूहात पर बातचीत की। उनके वालिद व दीगर अफरादे खानदान से भी मुलाकात करते हुए पुरसा किया और फयाजुद्दीन की वालिदा के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा एस सलीम तेलंगाना रिडको चेयरमैन, प्रभाकर रेड्डी नोडा चेयरमैन, BRS पार्टी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस बबलू खान के अलावा इमरान शहजाद अक़लियती सेल सदर BRS पार्टी, सुमेर अहमद जिला कायद BRS, फ़हीम कुरैशी, मोहम्मद अमर फारूक, मोहम्मद अकबर खान के अलावा BRS पार्टी कायदीन और मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की गाड़ी हादसे का शिकार, पैर पर जख्म आए। आरमूर में रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के हमरा शादी में शिरकत के लिए जाने वाली गाड़ियों में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की गाड़ी को पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर दी थी, जिससे वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के पैर पर चोटें आई। फौरन उनको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से ये हादसा पिरकिट रोड पर पेश आया। शायरों व मुसन्निफों की तहरीरों में आने वाली नस्लों को इंसानियत से उजागर करना चाहिए ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। 22 जुलाई को दाशार्दी शायर के मुजस्सिमे को नस्ब किया जाएगा। MLC की कविता का बयान। समाज के लिए अपना कलम चलाने वाले मुसन्निफों से अच्छाई की उम्मीदें लगाई जाती है। बारीकियों के साथ इंसानियत का खात्मा करने वाले अल्फाज को दूर भगाने की जरूरत है। चारशंबे के रोज निजामाबाद में मुनक्कद किए गए मुसन्निफों के संगम के 5वें सालाना प्रोग्राम के मौके पर हिस्सा लेते हुए MLC की कविता ने इस बात का इजहार किया। दाशार्दी VK अलवारी स्वामी को निजाम हुकूमत के दौरे इख्तिताम में निजामाबाद जेल में कैद किया गया था। उन जेल की दीवारों पर दाशार्दी शायर मुसन्निफ ने कोयले के टुकड़े से जेल की दीवारों पर लिखा था कि ना तेलंगाना कोटी रत्नाला वेना तेलंगाना, मेरा तेलंगाना करोड़ों हीरे जवाहरात से भरा तेलंगाना। जैसी अहम बात कि तेलंगाना हासिल करने के लिए एक नई जदोजहद की राह हमवार की।
उस जेल की दीवार को, उनके सुनहरे अल्फाज को MLC के 40 लाख फंड्स खर्च करते हुए तरक्की दी जाएगी। 22 जुलाई को शायद दाशर्दी के जन्मदिन के मौके पर दाशर्दी के मुजस्सिमे को नस्ब किया जाएगा ताकि आने वाली नस्ल को उनकी अहमियत बताई जा सके। जिले में कई नामवर शायर और अच्छे मुसन्निफ हैं। बरसों से आई रिवायत को कायम रखते हुए समाज में तब्दीली लाए। पेन की स्याही का एक खतरा इंसानी मुआशरे की जिंदगी बदल सकता है। अपनी तहरीरों व तसनीफों को जारी रखें। తర్వాత మన ఫోన్లకు రకరకాల జాడియాలు వచ్చినాయి, అది పోకర్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, అవి ఇంకా పెరుగుతున్నాయి, పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. వాటికి మాత్రం అడ్డుకట్ట వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అది సాహిత్యంతోనే జరుగుతుందనేటటువంటి విశ్వాసం నాకు. ఎందుకంటే ప్రపంచ గతి ఒక మనిషి ఆలోచనను, ఒక యావత్ సమాజం ఆలోచనను మార్చేటటువంటి శక్తి ఒక చిన్న సిరా చుక్కకున్నది. డెఫినెట్గా సమాజ హితం కోసం పనిచేసే సాహిత్యం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ సాహిత్యం సృజన జరుగుతుంది అనేటటువంటి నమ్మకం నాకు మా ఇందూరు రచయితలందరి మీద కూడా ఉన్నది. తప్పకుండా అన్న, ఇందాక మన సోదరుడు జగన్ మాట్లాడుకుంటున్నాడు, మనందరం కలం విదిలించాలి, నేనైతే జూలు విదిలించాలని చెప్తాను, సింహాల్లాగా బయటకు రావాలి. ఎందుకోసం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం చేసింది